Hello everyone. In this class, we will learn how to do the voucher entries, right? So this is in continuation of our previous lecture only. हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन. हमारे क्वेश्चन में now we are required to record the following transactions in the books of Alpha Limited. ठीक है? तो all cash purchases and sales, payment to creditors or receipt from debtors are done through SBI. Any other payment and receipt is done through Axis Bank or cash account. फिर उसके बाद उसने क्वेश्चन में हमें काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स दी हैं विच वी हैव टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड एंड अल्टीमेटली we are required to create a company, create appropriate groups and ledgers, enter the transactions and display the following statements. So हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं हाउ टू क्रिएट अ कंपनी. हमने एक कंपनी क्रिएट की थी अल्फा लिमिटेड, फिर हमने उसकी बुक्स में लेजर्स क्रिएट किए थे, राइट. नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शंस बाय सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट voucher type. तो देखो, what is the difference between manual accounting and computerized accounting? In manual accounting, we record the transactions by passing the journal entries. In computerized accounting, we have to record these transactions by doing voucher entries. आप appropriate voucher select करोगे and then you will record the transactions. तो voucher कौन कौन से होते हैं, कौन सा voucher कब use होता है? First we will understand this part and then we will start recording the transactions. So I have opened my Tally software. This is the gateway of Tally. अब हमें क्या करना है, हमें क्या record करनी है, transactions. So to record the transactions, here you can see transactions. Transactions में वो आपको दे रहा है vouchers and day book. So here I will select vouchers. जब मैंने voucher select किया तो उसने मुझे purchase voucher open करके दिया है, but on the right hand side we can see F4 is for contra voucher, F5 payment voucher, F6 receipt voucher, F7 journal voucher and F8 sales voucher, whereas F9 is the purchase voucher. So let us just understand these vouchers and then हम transactions record करेंगे by selecting the appropriate voucher. So our first voucher is contra voucher. Now contra voucher क्या होता है बच्चे? अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हुई है जिसका नेट इफेक्ट निल है, ठीक है, जहाँ पे कैश इन्वॉल्व था या बैंक इन्वॉल्व था, बट द नेट इफेक्ट इज निल, that transaction will be recorded through contra voucher. For example, let's say you have withdrawn some money from your bank account. ठीक है, so if you have withdrawn the money from your bank, आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा and simultaneously उतने अमाउंट से आपका कैश बैलेंस will increase. So you will pass the entry cash account debit to bank. This is what? This is a contra entry, right? Let's say you have withdrawn the money from one bank account and deposited this to another bank account. तो आपका एक बैंक अकाउंट का बैलेंस कम होगा, simultaneously the bank balance of other bank account is being increased, right? तो कोई भी ट्रांजेक्शन जो ऐसी है जहां पर हमारा कैश एंड बैंक इन्वॉल्व है एंड अल्टीमेट इनफ्लो और आउटफ्लो क्या है, nil, net effect is nil, that transaction is a contra entry and it will be recorded by this voucher, that is the contra voucher. After this, let's come to this voucher, that is the payment voucher. अब पेमेंट वाउचर में अगर आपने कोई भी पेमेंट करी है, लेट्स से यू हैव पेड एनी एक्सपेंस, ठीक है, आपने किसी एक्सपेंस की पेमेंट कर दी, आपने कोई एसेट परचेज कर ली, आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी, तो कहीं पर भी जब आप पेमेंट करते हो to record those transactions, we will select this voucher, that is the payment voucher. After this, I'm coming to the next voucher, receipt voucher. Now, receipt voucher कब यूज होगा बच्चे? If you are receiving the money, आपने asset sell करी, आपके पास पैसा आया, you will record this in the receipt voucher. आपने अपने debtors से कुछ पैसा receive किया, you will record this in your receipt voucher. ठीक है? So if you are getting the money, receipt voucher. If you are making the payment, payment voucher. नेक्स्ट वाउचर इज जर्नल वाउचर. अब जर्नल वाउचर क्या होता है? बेसिकली इट इज यूज टू रिकॉर्ड एनी एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है, या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन जो आप कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीट, सेल्स या परचेज में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, दैट कैन बी रिकॉर्डेड हियर इन द जर्नल वाउचर. फाइन. सो फॉर एग्जांपल, इफ देयर आर एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस है आपके पास, आपने कोई रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है, दैट कैन बी डन बाय सिलेक्टिंग दिस वाउचर, दैट इज द जर्नल वाउचर. After the journal voucher, we have this sales voucher. Now, sales voucher and purchase voucher, ये दोनों के लिए आपको माइंड में एक पॉइंट रखना है that these two vouchers will be used
only for recording the transactions related to goods or services in which the business organization is dealing. So अगर आपने goods को sell किया है या कोई services को sell किया है, to record those transactions you will record this, use this voucher, sales voucher. ठीक है? Similarly, अगर आपने goods purchase किए हैं या services purchase किए हैं, you will use which voucher? You are going to use this voucher. That is the purchase voucher. So I hope I have covered these topics. Contra voucher for contra transaction, पेमेंट वाउचर अगर आपने पेमेंट करी है, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी, एसेट परचेज करी है, आपका कैश आउटफ्लो हुआ है, ठीक है, आपने कोई एक्सपेंसेस की पेमेंट कर दी, सो यू विल यूज दिस पेमेंट वाउचर. हियर F6 रिसीट वाउचर, अगर आपने कोई पैसा रिसीव किया है, लेट्स से डेटर से अमाउंट रिसीव हो गया, रिसीट वाउचर. ठीक है. जर्नल, कोई भी ट्रांजैक्शन इन वाउचर में नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे, जर्नल वाउचर. एडजस्टमेंट एंट्रीज, जर्नल वाउचर. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जर्नल वाउचर. ठीक है. सेल्स एंड परचेज कब यूज करेंगे? टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स और सर्विसेज. फाइन. So if these vouchers are clear, the next thing that we have to do is we have to record the transactions. So let's get back to our question and see how many transactions are there and कौन सी transaction के लिए हमें कौन सा voucher use करना है. So the first is purchased from Pooja 30 cotton shirts for rupees 12,000 and 20 cotton trousers at the rate of rupees 950. तो सबसे पहले ये journal entry क्या बनेगी बच्चे? Purchased from Pooja, right? So that means this is a credit purchase. Fine. आपने परचेज करी है पूजा से, आप एंट्री पास करोगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पूजा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हम ये एंट्री कौन सा वाउचर सिलेक्ट करके पास करेंगे. सो सी, इफ वी आर परचेजिंग द गुड्स, शर्ट्स में ही डील करते थे हम, शर्ट्स एंड ट्राउजर्स में. इफ वी आर परचेजिंग द गुड्स, हम परचेज के लिए बच्चे कौन सा वाउचर यूज करेंगे? वी आर गोइंग टू यूज द वाउचर दैट इज द परचेज वाउचर. फाइन. So here from the right hand side I will select the voucher परचेज वाउचर. ठीक है. अब हमने परचेज वाउचर सिलेक्ट कर लिया. आप यहाँ पे देखो परचेज, ऑटोमेटिकली इट विल गिव द नंबर. ठीक है. सप्लायर इन्फो, invoice number, we don't have any invoice number, we will skip this by pressing enter. Again press enter. and party name में हमने परचेज किससे किया बच्चे? पूजा से. क्योंकि हमने पूजा का लेजर अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था तो वो हमें यहाँ पर शो कर रहा है, different ledgers which we have created. and here I will select Pooja. When he's going to ask you the receipt details, you can just skip this by pressing enter. Again press enter here till you get back to the screen. Next is purchase ledger. अब purchase ledger में मैंने purchase account create किया हुआ है तो वो मुझे show कर रहा है purchases account. आपने नहीं create किया होगा तो आप create कर सकते हो. ठीक है. कैसे create करेंगे? I'll show you this step in the next entry. Here, since I have already created the purchase account, I will select this and here I'll record the item. तो हमने purchase किया था cotton shirts. From list of stock items, I will select cotton shirts. How many cotton shirts? 30. ठीक है. And these 30 cotton shirts were purchased for rupees 12,000. तो आपके पास amount given है. ये रेट हमने जो पहले वाला रेट फीड किया हुआ था वो इसी के अकॉर्डिंग आ रहा है. आप अमाउंट चेंज कर दो 12,000 एंड यू विल गेट द रेट. फाइन. सो आपने कॉटन शर्ट परचेज करी 30 फॉर रुपीज 12,000. रेट अपने आप सिस्टम ने आपको कैलकुलेट करके दे दिया. नेक्स्ट आपने पूजा से ही 20 कॉटन ट्राउजर्स भी परचेज किए हैं एट द रेट ऑफ रुपीज 950. सो दिस आई विल रिकॉर्ड कॉटन ट्राउजर्स. ठीक है. कितनी परचेज करी है बच्चे हमने? 20. एंड हमें यहाँ पर रेट गिवन है, रेट इज 950 पर ट्राउजर. फाइन. सो ये हमारा आ गया टोटल. उसने हमारे को बिल अमाउंट दे दिया 31,000. सो आई हैव रिकॉर्डेड द फर्स्ट ट्रांजेक्शन एंड हम इसे सेव कैसे करेंगे? बाय प्रेसिंग कंट्रोल ए. ठीक है. लेट्स गेट बैक टू आवर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन. सोल्ड टू मंगल 30 terracotta shirts at the rate of rupees 600 and to Rahul jeans trousers 40 at the rate of rupees 1100. Now sold to Mangal. अगर आप मंगल को सेल्स कर रहे हैं हम, if we are selling the goods to Mangal, that means this is a
क्रेडिट से, तो मंगल कौन हो गया हमारा डेटर, राइट। एंड हम बच्चे अगर क्रेडिट सेल कर रहे हैं, सेल किस चीज की कर रहे हैं, गुड्स की। अगर आप गुड्स में गुड्स परचेज करते हो तो परचेज वाउचर, आप गुड्स सेल करोगे तो सेल्स वाउचर, राइट। हियर वी आर सेलिंग द गुड्स टू मंगल, तो हम वाउचर कौन सा सिलेक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से हम वाउचर सिलेक्ट करेंगे सेल्स वाउचर। फाइन, सेल्स किसको की है हमने, पार्टी नेम में वी विल सिलेक्ट मंगल, ठीक है। दिस यू कैन स्किप बाय प्रेसिंग एंटर, अगेन एंटर टिल यू गेट बैक टू द स्क्रीन। नाउ सी, ये मैं आपको सिखा रही थी वहां पे, क्योंकि मैंने परचेज लेजर क्रिएट किया हुआ था तो मुझे लिस्ट ऑफ लेजर्स में शो कर दिया, मैंने सिलेक्ट कर दिया। नाउ सेल्स लेजर में जब हमने देखा तो लिस्ट ऑफ लेजर्स में वी डू नॉट हैव सेल्स लेजर, हमने सेल्स अकाउंट प्रिपेयर ही नहीं किया था, सेल्स लेजर क्रिएट ही नहीं किया था। तो नाउ यू कैन क्रिएट द सेल्स लेजर कैसे, ईदर यू कैन यूज द कमांड Alt+C, या फिर आप यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करोगे। सी, यहाँ पे वी कैन क्रिएट दी सेल्स अकाउंट, मैं नेम क्या दूंगी, सेल्स अकाउंट। फाइन, कौन सी कैटेगरी में आएगा ये हमारा, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से वी विल सिलेक्ट सेल्स। टाइप ऑफ लेजर में आप सिलेक्ट करोगे नॉट एप्लीकेबल, हियर नो, एंड यू विल एक्सेप्ट दिस। फाइन, सो अगर आपने पहले ही लेजर्स क्रिएट करे हुए हैं बट वाइल पासिंग दी जर्नल एंट्रीज, वाइल रिकॉर्डिंग दी ट्रांजेक्शंस आपको ऐसा लगता है कि ये लेजर पहले क्रिएट नहीं हुआ होता, तो देयर इज नो नीड टू गो बैक टू क्रिएट दी लेजर्स, आप सिंपली प्रेस कर सकते हो Alt+C एंड आपके पास लेजर क्रिएट करने की विंडो विल अपीयर। फाइन, सो लेट्स सी हियर, हमने मंगल को सेल करी है, क्या सेल किया हमने, 30 टेरिकोट शर्ट्स एट द रेट ऑफ ₹600। so here name of item I'll write टेरिकोट शर्ट्स, कितनी है 30 एंड द रेट इज 600, ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। नेक्स्ट, आपने सेल की थी राहुल को 40 ट्राउजर्स एट द रेट ऑफ ₹1102, फिर से राहुल को अगर हमने सेल्स करी है तो हमारा वाउचर यही रहेगा, सेल्स वाउचर। पार्टी नेम अब मंगल की जगह हम सिलेक्ट करेंगे राहुल, here also we'll select Rahul. Now sales ledger में see, since in our previous transaction only we have created the sales account, तो वो हमें list of ledgers में show कर रहा है sales account. Fine, so I will select this sales account. Here which item has been sold, jeans trousers 40, तो आप यहाँ पर select कर लोगे jeans trousers, how many units, 40 and at the rate of 1100. Fine, this is also done. Save this information. Save कैसे करेंगे, Control A. So I have recorded first two transactions, मैं दोबारा repeat कर देती हूँ। Goods purchase करोगे तो purchase voucher, goods sell करोगे तो sales voucher, ठीक है। Now point number 3, paid to Pooja ₹30,000 in full settlement for the purchase of 30 cotton shirts and 20 cotton trousers in transaction number 1। तो अभी हमने देखा फर्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने पूजा से कुछ परचेजेस की, राइट। अब उन परचेजेस के बदले में हम पूजा को पे कर रहे हैं कितना, 30,000 इन फुल सेटलमेंट। तो जब आपने परचेज किया था बच्चे 30 कॉटन शर्ट्स फॉर ₹12,000 एंड 20 कॉटन शर्ट्स एट द रेट ऑफ 950, आपका टोटल अमाउंट जो ड्यू है, जो आपने पूजा, जो आपकी क्रेडिटर है, आपको पे करना है उसे, द अमाउंट पेएबल इज 31,000 बट यू आर पेइंग 30,000 टू हर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री करते हैं। इफ वी आर मेकिंग द पेमेंट टू एनी क्रेडिटर, व्हाट विल बी द एंट्री, उस क्रेडिटर का अकाउंट हम डेबिट करेंगे, दैट मीन्स पूजा अकाउंट डेबिट। कितना देना था बच्चे, हमने उसे देना था 31,000 एंड वी आर पेइंग हर 30,000, दैट मीन्स यहाँ पर हमें उससे डिस्काउंट, हमने उसे अलाउ किया है और हमने डिस्काउंट रिसीव किया है। we are receiving the discount now, we are getting the discount, पे करना था 31, we are paying her 30,000, that means we are getting the discount of 1,000 rupees। फाइन, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी इस केस में,
Our journal entry would be पूजा account debit 31,000 to पे कैसे करेंगे उसने हमें बोला था पेमेंट अगर आप करोगे क्रेडिटर को तो वो किस अकाउंट से होगी थ्रू एसबीआई अकाउंट तो हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी यहाँ पे पूजा अकाउंट डेबिट 31,000 टू एसबीआई अकाउंट 30,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000 सो दिस विल बी माय जर्नल एंट्री नंबर 1 नंबर 2 कौन से वाउचर के थ्रू हम ये पेमेंट की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे सिंस वी आर मेकिंग द पेमेंट that means we are going to select which voucher the payment voucher so here I will select payment voucher fine अब payment voucher हमने select कर लिया बच्चे पेमेंट हम किसको कर रहे हैं वी आर मेकिंग द पेमेंट टू पूजा तो मैंने पूजा अकाउंट कर लिया ठीक है पूजा अकाउंट डेबिट अब आपको यहाँ पर क्या करना है जब भी आप ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे फाइन तो यहाँ पर सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो यूज हुआ है और हमने देखा था कि हमें क्या करना होता है डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं हम सो प्लीज यू हैव टू डू सर्टेन चेंजेस हियर ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी चेंज मोड ठीक है चेंज मोड में मेरे सिस्टम में डबल एंट्री मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ था तो वो डबल एंट्री आ रहा है बट आपके में सिंगल एंट्री सिलेक्ट हुआ होगा सो बाय क्लिकिंग ऑन दिस चेंज मोड यू हैव टू सिलेक्ट दिस मोड डबल एंट्री एंड देन यू विल रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन फाइन तो अब हमने डबल एंट्री मोड कर लिया अपना हमारी एंट्री क्या है पूजा अकाउंट डेबिट ठीक है कितना सा पूजा को अपने पे करना था 31,000 now he is asking you मेथड ऑफ एडजस्टमेंट एडवांस अगेंस्ट रेफरेंस न्यू रेफरेंस या ऑन अकाउंट सो सी क्योंकि हमने ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं हम ट्रांजेक्शन नंबर 3 किसकी रेफरेंस में इन रेफरेंस टू ट्रांजेक्शन नंबर 1 सो यहाँ पे मैं क्या सिलेक्ट कर लूंगी अगेंस्ट रेफरेंस अपने आप उसने शो कर दिया ना आपको नेम 131,000 सो नेक्स्ट हाँ जी अब पूजा अकाउंट डेबिट हो गया टू बच्चे पेमेंट कौन से अकाउंट के थ्रू करनी है हमने थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सो हियर आई राइट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड instead of paying her 31,000 we are paying her 30,000 so I'll change this amount ठीक है ये आप एंटर प्रेस कर दो हाँ जी नेक्स्ट मेरा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए बच्चे हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है इससे 1,000 का तो जब हमारा लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट हम देख रहे हैं वी हैव नॉट क्रिएटेड द डिस्काउंट रिसीव्ड लेजर सो अब हम क्रिएट कर सकते हैं कैसे ईदर आई विल क्लिक ऑन दिस क्रिएट ऑप्शन और सेकेंडली मैंने आपको क्या बताया था आप प्रेस करोगे ऑल्ट प्लस सी सो हम इसे क्रिएट पे क्लिक करते हैं ये मेरा हो गया लेजर क्रिएशन हमें कौन सा लेजर क्रिएट करना है डिस्काउंट रिसीव्ड डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है हमारी दिस इज माय इनकम एंड इट विल कम अंडर द ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम्स टाइप ऑफ लेजर में आप हमेशा सिलेक्ट कर लो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल दिस इज नो एंड ये आपका लेजर क्रिएट हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड एंड दिस इज 1,000 so this is how you will record the transaction related to payment ठीक है आपको क्या करना है आपको मोड चेंज करना है डबल एंट्री मोड करना है एंड देन यू कैन रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन नेक्स्ट इज वो आपसे नरेशन भी बोलेगा तो आई एम स्किपिंग दिस पार्ट बट यू कैन राइट द नरेशन बीइंग पेमेंट मेड टू पूजा एंड डिस्काउंट रिसीव फॉर द टाइम बीइंग आई एम स्किपिंग दिस पार्ट नरेशन एंड आई विल जस्ट accept this next is we have recorded this transaction number 3 next is point number 4 received from Mangal rupees 17,500 in full settlement of the transaction done in serial number 2 now received from Mangal कौन था हमारा debtor जिसको हमने credit sales की थी अब आपने उसे credit sales की थी 30 into 600 18,000 की and you are receiving only 17,500 that means मिलना 18,000 था रिसीव कर रहे हैं 17,500 सो देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ ₹500 अब ये डिस्काउंट हमने अलाउ किया है ठीक है तो हम एंट्री क्या पास करेंगे अगर आप कोई भी डेटर से पेमेंट रिसीव कर रहे हो तो उसने बोला है आपको एसबीआई बैंक के थ्रू होगी तो हमारी एंट्री हो जाएगी बच्चे एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट
17,500. Discount allowed 500 to Mangal 18,000. So this will be my journal entry. SBI account debit, discount debit to Mangal. Fine. Since we are receiving the payment, हमारा voucher कौन सा select होगा? We will select this voucher, receipt voucher. ठीक है, तो receipt voucher में हमने select करना है, हमने credit किसको करेंगे? सी credit पहले आ रहा है ना, तो आप credit करोगे, पैसा किससे मिल रहा है? मंगल से. ठीक है, इसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने अमाउंट से? 18,000. अगेन वो आपसे पूछ रहा है अगेंस्ट रेफरेंस, तो दिस ट्रांजेक्शन is also in reference to the transaction number 2. So here also I will select against reference, press enter. ठीक है, अब डेबिट कौन कौन से अकाउंट होगा बच्चे? पैसा कौन से अकाउंट में आ रहा है? यू आर गेटिंग द मनी इन योर SBI अकाउंट, but we are not getting 18,000, rather we are getting 17,500. So here I'll select 17,500. ठीक है, बाकी कौन सा अकाउंट डेबिट होगा आपका? आपने यहाँ पर डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउड. ठीक है, तो देख लेते हैं कि हमने डिस्काउंट अलाउड का लेजर पहले क्रिएट किया है. नो. So if you have not created any ledgers, right, while creating the ledgers you can do so right now. कैसे? क्लिक कर देंगे क्रिएट पे, या फिर मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, द कमांड इज Alt+C. So I'll click on this, create here, discount allowed. अब discount allowed is your indirect expense, so I will select this indirect expenses. This is not applicable, and ये हमारा discount allowed लेजर क्रिएट हो गया. आप नरेशन लिखोगे अपने एग्जाम में, बट हियर यू कैन स्किप दिस. ठीक है, सो इन द फर्स्ट 4 ट्रांजेक्शंस हमने क्या क्या किया? परचेज किया गुड्स, तो हमने परचेज वाउचर यूज किया. सेल किए थे गुड्स ऑन क्रेडिट, तो वी यूज द सेल्स वाउचर. हियर वी हैव मेड द पेमेंट टू पूजा टू आवर क्रेडिटर्स, पेमेंट वाउचर. डेटर से पैसा रिसीव किया तो रिसीट वाउचर. तो आई होप these 4 transactions are clear. Next is paid to Akash 15,000. अब paid to Akash, आकाश आपका क्रेडिटर होगा, आप उसको पेमेंट कर रहे हो. ठीक है, अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो हम कौन सा वाउचर सिलेक्ट करेंगे? वी विल सिलेक्ट द पेमेंट वाउचर. सो हेयर आई सिलेक्ट पेमेंट वाउचर. जर्नल एंट्री क्या होगी बच्चे? अगर आप पेमेंट करते हो तो जिसको आप पेमेंट कर रहे हो उसका अकाउंट आप डेबिट कर दोगे, एंड जिस फॉर्म में आप पेमेंट कर रहे हो दैट फॉर्म विल, जिस अकाउंट के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो दैट विल गेट क्रेडिटेड. सो इफ यू आर मेकिंग द पेमेंट टू क्रेडिटर्स, हम SBI के थ्रू करते हैं. हम यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं आकाश को. सो आकाश अकाउंट डेबिट, वी आर पेइंग हिम 15,000. ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास इसका कोई रेफरेंस नहीं है, तो वी विल सिलेक्ट ऑन अकाउंट, and the payment will be made through SBI account. So this is going to be my entry. I hope this is clear. Journal entry क्या बन गई आपकी? आकाश account debit to SBI, and let's accept this. Fine. So ये first 5 entries are done. Next is purchases from Naveen 15 woolen shirts at the rate of rupees 800 per shirt. So I hope अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा. आप purchases कर रहे हो, आप goods purchase कर रहे हो. Which voucher? Purchase voucher. Purchase किससे कर रहे हैं? From Naveen. So सबसे पहले we will select this voucher, purchase voucher, right? आप invoice number and date skip कर दोगे. Purchase is करिए हमने नवीन से, तो आई सिलेक्ट नवीन, एंटर, अगेन एंटर टिल यू गेट बैक टू दी स्क्रीन. अब परचेज लेजर में परचेज अकाउंट हमने ऑलरेडी ओपन कर दिया था, क्रिएट कर दिया था, सो आई सिलेक्ट दिस. हाँ जी, नेम ऑफ आइटम क्या परचेज किया बच्चे हमने नवीन से? 15 वुलन शर्ट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 800 पर शर्ट. सो here in the name of item I'll select woolen shirts. Fine. Now quantity कितनी है? 15, and the rate is 800. ठीक है, सो ये आ जाएगा आपका अमाउंट 12,000. लेट्स सेव दिस, कंट्रोल A. नेक्स्ट
purchased from Akash woolen trousers 20 at the rate of rupees 1000. So आकाश से आपने परचेज किया, परचेज वाउचर ही ओपन हुआ है, हम ना स्किप कर देंगे इसे. We will select here Akash, skip this, keep pressing enter till you get back to the screen. हाँ जी, here we will select purchase account. Fine. क्या परचेज किया हमने इससे? Woolen trousers 20. So I'll select here woolen trousers 20 at the rate of rupees 1000. Accept this. So we have covered these 7 transactions. Next is 8. Sold to Seema 20 terracotta shirts at the rate of rupees 700 and allowed her a trade discount of 15%. So पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये एंट्री है क्या. Sold to Seema 20 terracotta shirts. तो बच्चे ये आपकी क्रेडिट सेल्स है, ठीक है. एंड आप ये क्रेडिट सेल्स किसको कर रहे हो? सीमा को 20 टेरिकोट शर्ट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 700 एंड आपने उसको 15% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, राइट. तो दैट मीन्स यहाँ पर डिस्काउंट भी आ रहा है आपके पास 15%. अब यहाँ पे जब भी आपके पास क्वेश्चन में ऐसा डिस्काउंट का पॉइंट आता है, व्हाट यू कैन डू, आप अपने कंपनी फीचर्स, आप अपने कंपनी पे क्लिक करोगे, आप अपनी फीचर्स पे कंपनी में इन कॉन्फ़िगरेशन यू कैन क्लिक ऑन दिस फीचर्स और डायरेक्टली यू कैन प्रेस F11. आप अपनी कंपनी सिलेक्ट कर लो, ठीक है. हेयर यू कैन सी आपके पास ऑप्शन है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस. तो आप लोगों के सिस्टम में ये बाय डिफॉल्ट नो सिलेक्ट हुआ होगा. आपको क्या करना है, आई अगेन गेट बैक टू दिस. जहां पर आपका यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस नो आ रहा है, आप इसको कर दोगे यस, ठीक है. जब आप इसे यस सिलेक्ट कर दोगे, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, आपकी स्क्रीन पे आपका परचेज के जो ये कॉलम होगा या सेल्स का कॉलम होगा, जो वाउचर की स्क्रीन है उस पर डिस्काउंट परसेंटेज कॉलम वो अपने आप शो करेगा, ठीक है. तो आप इफ देयर इज एनी ट्रांजेक्शन जहां पर डिस्काउंट भी इन्वॉल्व है परचेज या सेल के टाइम, आप उसे कैसे चेंज कर सकते हो. मैं दोबारा से रिपीट करूंगी स्टेप. कंपनी पे गए, फीचर्स पे क्लिक किया, आपने कंपनी सिलेक्ट कर ली अपनी. हेयर use discount column in invoices में आपको no की जगह you have to make this yes. Fine. So these are the steps which you have to follow. Right? So अब हम वापस से आते हैं अपने क्वेश्चन पे. हमने क्या किया था? Sold to Seema 20 terracotta shirts at the rate of 700 and allowed her a trade discount of 15%. So that means these are the credit sales. Sales कर रहे हैं goods की, तो voucher हमारा use होगा. We will use the voucher sales voucher. ठीक है. सेल्स करी किसे हमने? सीमा को. प्रेस एंटर, अगेन प्रेस एंटर, ठीक है. सेल्स अकाउंट ऑलरेडी ओपन था. क्या सेल किया हमने? सोल्ड टू सीमा 20 टेरिकोट शर्ट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 700. सो हियर आई विल राइट टेरिकोट शर्ट्स क्वांटिटी इज 20 at the rate of rupees 700 and in your discount column now you can write 15. So देखो उसने अपने आप डिस्काउंट कैलकुलेट करके अमाउंट कर दिया, ठीक है. So this is also done. So till now we have seen this purchase voucher, sales voucher, payment voucher, receipt voucher and how to incorporate this discount, ठीक है. Next transaction is purchased furniture rupees 25,000. तो बच्चे यहाँ पर अगर आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू. अब फर्नीचर की पेमेंट हम कर रहे हैं, कैसे उसने कहा था, अगर आप कैश परचेज या कैश सेल्स करोगे, क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे या डेटर से रिसीव करोगे तो एसबीआई के थ्रू होगा. अदरवाइज फॉर एनी ट्रांजेक्शन यू कैन यूज एक्सिस बैंक और कैश अकाउंट, राइट.
सो अगर हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, हमारी पेमेंट होगी ईदर थ्रू एक्सिस बैंक और थ्रू कैश अकाउंट. सो आई एम सिलेक्टिंग द एक्सिस बैंक और हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू एक्सिस बैंक. नेक्स्ट द क्वेश्चन इज कौन से वाउचर के थ्रू एंट्री होगी. सो सिंस वी आर मेकिंग द पेमेंट फॉर परचेजिंग दिस फर्नीचर, सो आई विल सिलेक्ट दिस वाउचर, पेमेंट वाउचर, राइट. डेबिट क्या होगा हमारा, फर्नीचर अकाउंट. फर्नीचर हमने परचेज किया बच्चे फॉर रुपीज 25,000 and we will credit which account, this account, Axis Bank account. Keep pressing enter till you get the screen and accept this. Fine. So this is how you are going to record the purchase of any asset. अगर हम सेल करते इसे तो हम सेल्स वाउचर यूज करते. Next is point number 10, paid insurance premium rupees 17,200. Paid insurance premium rupees 17,200. That means again यहाँ पर किसी expense की payment हो रही है, right? कितनी, 17,200. So again for this we will pass the entry insurance premium account debit to Axis Bank. ठीक है, तो पेमेंट होगी, वाउचर कौन सा आ जाएगा, पेमेंट वाउचर. इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, तो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम का लेजर क्रिएट नहीं किया हुआ. वी विल क्रिएट द लेजर बाय क्लिकिंग ऑन दिस क्रिएट एंड ये हम लिख देंगे यहाँ पे लेजर का नाम. द नेम इज इंश्योरेंस प्रीमियम. अंडर विच ग्रुप, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. दिस इज नॉट एप्लीकेबल, नो एंड एक्सेप्ट दिस. आपका इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट क्रिएट हो गया. ठीक है, कितना इंश्योरेंस प्रीमियम था हमारा, 17,200. पेमेंट किससे कर रहे हैं हम, कौन से अकाउंट से, एक्सिस बैंक. सो दिस इज ऑल्सो डन.